Assalamualaikum and welcome to your show. मैं हूं आपका होस्ट हसन शहरियार यासीन. सिनेमा का रिवाइवल है. It's become amazing. ना सिर्फ amazing मगर इतने अच्छे और छोटे रेगुलर इंटरवल्स पे मूवीज निकल रही हैं that we're spoiled for choice. मुझे याद है कि कभी हमें मौका नहीं मिलता था मूवीज देखने का, इतने कम टाइम पे निकलती थी. मगर now movies are coming out regularly और ना सिर्फ मूवीज, मैं अब टीवी भी बहुत ज्यादा देखता हूँ. हमारे ड्रामेस हमेशा से अच्छे थे, हमेशा से, मगर अब इतने अच्छे हो गए हैं that everybody is tuned on to television all the time. New dramas, plays, comedy, you name it, we are amazing at it. और ये amazing कौन बनाता है? Obviously, the new talent who are joining our industry. हमारा शो का मकसद क्या है? कि हम आपको उन लोगों से मिलाएं that are making a difference. और आज जो मेरे पास दो मेहमान आए हैं, उन्होंने यही किया है. They have made a difference, और ना सिर्फ एक difference, but they have made a mark. They are taking the industry by a storm. और इस storm को मैंने आज अपने शो पे बुलाया है. Are you ready to meet them? Because they are not only incredibly talented and beautiful, but great people. They're right here, and I'm going to introduce you to them right here on D-Juice Presents tonight with HSY. Welcome back. आज जो मेरी पहली मेहमान है, she is incredibly talented, but she is also incredibly beautiful. जब मैं ग्रीन रूम में उनसे बातें कर रहा था, वो मुझे कह रही थी कि वो एक टॉमबॉय हैं, और मैं उनको देख के मैं समझ नहीं सक रहा था कि अपने आप को टॉमबॉय कैसे कह सकती हैं. वो इतनी ग्लैमरस हैं, वो इतनी एलिगेंट हैं, वो इतनी वेल स्पोकन है कि she looks like a diva, but she's not a diva. Not from what I've seen, and I'm sure कि जब हमारी बातें होंगी, not from her बातें as well. She is not only talented on the screen, but she is also incredibly talented in production, in theater, and so much more. बहुत मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा, and I want you to get to know her very well as well. She's here on my show, ladies and gentlemen. She's the one and only Hareem Farooq. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप हरीम? बिल्कुल हसीन लग रही हैं. थैंक यू. Parents are doctors, हाँ. दोनों अम्मी अब्बू डॉक्टर्स हैं. माँ एक she's a very known dermatologist. Yes, absolutely. ये beautiful skin के वो भी राज आपको देने पड़ेंगे. डॉक्टर क्यों नहीं बनी? I don't know. Maybe मैंने इतनी डॉक्टरी देख ली थी घर में कि I never wanted to be a doctor. Plus science was never my thing, to be very honest. I mean, doctors. For once, I mean, both my parents are doctors, but this is the irony कि मुझे खून से, इंजेक्शन से, इन चीज़ों से they irritate me. मैं बेहोश हो जाती हूँ उनको देख के, तो मैं तो डॉक्टर बन ही नहीं सकती थी ना, impossible से सब. पर डॉक्टर नहीं बनना चाह रही थी, मगर मैंने सुना कि आप बनना चाहती थी लॉयर. Absolutely. हाँ. लॉयर बनते आप इस फील्ड पे आ गई. How did that happen? Where did that journey happen? ये spark कब आया? To be very honest, दो प्रोफेशंस थे जो मुझे पता था कि मैं करूँगी. एक लॉयर था और एक एक्टिंग था. I never expressed my passion to be an actor इतना openly. I think वो बढ़ता गया. Then I started doing law after my A-levels. Did you? Yes, I did. And you left it? Yeah, but that's a funny story क्योंकि बीच में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू डू दिस थिएटर प्ले. उसमें लिटरली मेरा आई थिंक 5 मिनट का रोल था, नॉट मोर देन दैट. बट द मोमेंट आई स्टेप्ड ऑन टू दैट स्टेज, that is where I realized I was like, I don't think I'm ever going back. You found yourself. Yes, absolutely. Parents बड़े cool हैं आपके, मैंने सुना है, especially your dad बहुत ज़्यादा cool हैं, हाँ, पर he's like more of a friend than मैंने सुना है बड़े बहुत cool dude हैं. Absolutely. इनकी support की आपको कभी ज़रूरत थी या parents ने कहा कि जो दिल करता वो करो? Both my parents, अम्मा अब्बा दोनों, they're very supportive, absolutely, for me and my sister both. लेकिन दोनों का एक वो था कि do whatever you want to in life, just get a degree for yourself first. You shouldn't be uneducated wherever you, especially खास तौर पे अगर आप मीडिया में आ रहे हैं तो education is very important. This is what he said. तो उन्होंने तो मुझे जबरदस्ती like get a degree and then do whatever you want to in the world. I was like अच्छा चलो ठीक है. Well, that's fantastic that you have parents who have supported you. दावर महमूद के साथ आपने अपना पहला प्ले किया. Is that your first love, theatre? Absolutely. And theatre से करते करते आप television पे आ गई. Why did you leave theatre if that is your first love? See,
आप कोई एक काम सारी उम्र नहीं करते रह सकते. It's not necessary कि मैं theatre, if I love theatre तो I am with theatre for the rest of my life. नहीं. अदनान सिद्दीकी के साथ आपने अपना पहला ड्रामा किया एंड अदनान भाई. हाँ, अदनान भाई कहती ना उन्हें. अदनान वो अलग स्टोरी है, वो बाद में उस पे आएंगे, वो भाई वाली स्टोरी पे. अदनान बड़े मजे की आपके बारे में बातें करता है. Oh, shit. अदनान के साथ आपने ये ड्रामा सीरियल किया, ह्यूज सक्सेस. Is he your favorite person because he was one of your first actors to work with? Yeah. Adnan Bhai is one person. Adnan Bhai. Yeah, he was such a gentleman. I mean, it was my first serial and it was my first international trip and we were shooting over there and he took such good care of me and he's so loving and he's such a nice person. I was like, Adnan Bhai, aap hi hain bas duniya mein. Adnan was on my show and I have to say he is one of the most nicest, kindest people. Yes, मगर ड्रामा करते करते एक बारिश में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया. हाँ, एंड बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से आपको 4 महीने के लिए या 3-4 महीने के लिए शूटिंग रोकनी पड़ी. 6 months. और फिर जब आप वापस आए तो आपको फिर भी काफी चोटें लगी हुई थी. What happened in that accident? Yeah, my brakes failed. It was raining. I was stupid. Please. खुद चला रही थी? Yes. I would like to give this message to all the people out there. Please wear your seat belts. You weren't wearing a seat No, belt? not at all. I was at a high speed. The brakes failed. It slipped. The car was all over. Mera sar steering pe laga and oh my God. The next thing I know, I was in the hospital. For 6 months Yeah, you were out? I broke my right arm. I broke this bone into 2 pieces. Wow. But कहते हैं, सब कहते हैं कि you were lucky. I consider myself lucky because डॉक्टर्स ने कहा कि वो इतनी हड्डी जो है वो इतनी अच्छे तरीके से लाइन हुई है कि इसको सर्जरी ना कराएं, नेचुरली हील होने दें. तो उसकी वजह से फॉर 6 months मुझे बेड रेस्ट पे थी मैं और अनएबल टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकती थी. उसी की वजह से प्रोजेक्ट्स रुका, बहुत सारी चीज़ें थी. बहुत वो टाइम पीरियड था जिसमें आई थिंक मैं थोड़ी डिप्रेशन में भी चली गई थी इनिशियली क्योंकि मुझे था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता. हालांकि मेरा ये बाजू सिर्फ यूँ था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माय ब्रेन वाज इंटैक्ट, बिल्कुल ठीक था, दिमाग ठीक था, बाकी सब कुछ ठीक था, कोई इंटरनल इंजरी नहीं थी. लेकिन इतनी मैं रिस्ट्रिक्ट हो गई थी ना कि मुझे दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड. मुझे शुरू में तो लगा था कि शायद सब कुछ ख़त्म है ना, अब तो मेरी ज़िंदगी में कभी ठीक होना ही नहीं है और ये सारी उम्र इसी तरह रहेगा. बट इट वर्कड. डेडिकेटेड हो बहुत ज्यादा अपने काम से, मगर तुम्हारे दोस्त नर्जिस कहती हैं कि तुम डिसऑर्गेनाइज भी बहुत हो. कहती हैं एक दफा तुम अलमारी खोलो तो कपड़े इस तरह बाहर आते हैं that you can swim through all of these things. How do you work and be disorganized all in the same go? मैंने तो इतनी सारी उम्र डांटे खाई हैं इस बात पे कि तुम्हारा कमरा क्या है, क्या किससे ज्यादा डांटे पड़ते थे? ओफ, अम्मी अब्बू तक से पढ़ती थी कि बेटा ये क्या है, इसको उठा के कहीं रख दो. बट इट्स ऑलवेज बिन अ प्रॉब्लम. हमेशा मसला रहा है मेरे लिए कि मेरा कमरा is always गंदा. I don't know why. But you're not a all over the place person. No, not at all. Not. But अच्छा, मैं भाई से मैं वापस बात आना चाहता था. अदनान was telling me कि आप जो हैं वो हर बंदे को, not everyone is भाई. Some people you decide कि ये कैटेगरी हो गया भाई की, and some people are first name basis. ये भाई की कैटेगरी होने के लिए क्या होना चाहिए और फर्स्ट नेम होने की बेसिस के लिए क्या होना चाहिए? ये सेपरेशन क्या है? Actually, जब initially my father always told me this कि तुम क्या भाई भाई लगी रहती हो, तुम्हें क्या मतलब. मैंने कहा पता नहीं अब्बू, देखती हूँ कि जरा सा कोई बड़ा होता है उम्र में भाई बोल देती हूँ. तो मुझे हमेशा डांट पड़ती थी कि ये क्या होता है, भाई बोल दिया, ये बोल दिया. तो मैंने इनिशियली स्टार्टेड तो भाई मैंने इज्जत में बोला था क्योंकि अदनान भाई is like a senior actor and I've always seen him and I've always respected him a lot. तो वो मेरे उसमें वो था कि अदनान भाई. But then he was so nice and so sweet कि it became अदनान भाई. तुम्हारी फ्रेंड्स कहते हैं तुम गॉसिप बहुत करती हो. Within friends. और किस चीज के बारे में गॉसिप करती हो? Random things. Like for example. Last time गॉसिप कब किया था? I think कल रात को. कल रात को. और किसके साथ किया था? Who was there? No, it was day before. It wasn't last night. It was day before. Gohar ke saath. Gohar ke saath? Yes. अच्छा, Gohar, he's a big actor. Gohar is Gohar bhai या Gohar? Gohar is always Gohar. Gohar is like the side pe Gohar. And if you could define Gohar in one word, what would that word be?
जिगर है मेरा, वो जिगर है। जिगर है। Ladies and gentlemen, अगर वो जिगर है तो आप टीवी के लिए बहुत बड़े स्टार भी हैं। He has grown into this incredible actor. He started off in theatre and he's taken his life into something that मैं उनको काम को देख के मैं उनको इतना इम्प्रेस होता हूँ। और ना वो सिर्फ बहुत अच्छे एक्टर हैं मगर he is an incredible communicator as well. जब भी मैं उनसे मिला हूँ बड़ी अच्छी बात करते हैं। Please put your hands together for my next incredible guest, Gohar. गोपाई सर गुरबाई सर ये क्यों कहते हो यार? मैंने सुना कि बड़े ये भाई और या भाई किस तरह कहते हो? ये बड़े तुम्हारे ये मैं ऐसा कहता हूँ भाईजान। ओ भाईजान जी। अच्छा ये एक हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं तो ये उनकी मैं नकल उतारता हूँ। ये कौन है आपके? ये हसन वकास राना नाम है उनका। अच्छा। और ये अभी यलगार जो फिल्म आ रही है उसके डायरेक्टर हैं। अच्छा। सो वो ये बहुत करते हैं और तो उनको तंग करने के लिए मैं और तुम्हारे सारे दोस्त इसको भी पता करता हूँ कि यार वो क्या कहता है और सबसे पहले वो ये बात हाँ, हर बात के ऊपर मेरा एक तकिया कलाम है कि अच्छा और सुनाए आप कैसे भाईजान जी। मगर हो तुम लाहौर के पक्का। हाँ खाने पीने का भी बड़ा शौक है। पक्का जी पक्का। देसी खाना बड़ा खाते हो? बहुत ज्यादा। और अब आ गए हो कराची। हाँ। कराची कैसे आए यार? जिधर रोजी लगी थी वहां पे आ गया। No, but on a serious note, I always wanted to pursue this career. और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की तो उसके बाद I realized कि उस वक्त लाहौर के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट एक डिसीजन था मेरी जिंदगी का कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आपको एक कंप्लीटली अननोन शहर में आना जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते। मगर लाहौर में अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली बॉम्बे ड्रीम्स की। तुमने बॉम्बे ड्रीम्स में हमजा अली अब्बासी कहते हैं कि वो तुम्हारे जो है ना वो टीचर हैं। उन्होंने कहा उन्होंने 3 दिन तुम्हें खूब उन्होंने सिखाया। वो कहते तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो कि ही इज योर टीचर। हमजा ने क्या तुम्हें सच बताया? उसने सिखाया तुम्हें? अगर हमजा अली अब्बासी, ये सवाल तुम्हारे लिए खास मैं कर रहा हूँ। हमजा अली अब्बासी तुम्हारे टीचर हैं? आज बता दो। हमजा अली अब्बासी जिसका भी टीचर होगा हाँ वो इस काउच पे नहीं बैठा होगा। Oh my God, that sums it up. अगर हमजा तुम्हारा टीचर है तो तुम्हें मेरे ब्लाउज से मसला तो नहीं होगा? Oh, Hamza, yeah, I have to have Hamza back on my show very soon. नहीं यार, but like Hamza, apart from no, he's not my teacher यार। अच्छा नहीं? But like he's my like kind of like जिसको आप कहते हैं ना कि आप he's my punching bag kind of a thing। हाँ। कि मुझे कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं जाके उसके ऊपर सारा कुछ वो बिलाल अशारी। हाँ, वो बिलाल उमैर, ये लोग वो बॉयज हैं मेरे के जिनके जब भी मुझे कोई मसला होता है तो मैं उनके ऊपर जाके सारा बोल देता हूँ, वो फिर ये सारा संभाल लेते हैं by one way or the other। और तुम बड़े लोगों से राय लेते हो। मैंने सुना है कि जब भी तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिले इनडिसाइसिव वो फोन करके सबसे पूछता बड़े हो के यार ये मैं करूँ या ना करूँ, यार तुम मुझे बता दो तुम्हारा क्या राय है। नहीं एक मिनट में तुम बता दो तुम्हारा क्या राय है। ये तुम्हारा हॉरोस्कोप तो टॉरस है। लड़ाके हो, दिल फेंक हो, शौक है बहुत इश्क करने का और डिसीजंस लेने का। एक काम में क्यों लोगों की तुम इतना पूछते हो? ये जहां तक डिसीजन की बात है ये वाकई में बड़ा मसला है। और ये मैडम जो साथ बैठी हुई है सबसे ज्यादा इनको फोन जाते हैं। अच्छा कि मैं यार हरीम मैं ये करूं कि ना करूं यार, ये क्या होगा पता लौंडा। हाँ लौंडा बॉय बॉय। अच्छा एक्टिंग करते करते लाइन प्रोड्यूसर बन गए? एक्टिंग तो अच्छा उस वक्त तक जब तक मैं एक्टिंग कर रहा था वो प्रॉपर उसका करियर नहीं था। मगर थिएटर तो था। थिएटर था बट वो नहीं होता कि आप साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में थिएटर भी कर रहे हैं, इस तरह था। हाँ। उस वक्त तक भी कोई डिसीजन नहीं लिया था। हाँ। कराची आया, कराची आने के बाद दिस आई मीन लाइक एक मेरी मैं उनको फेरी गॉड मदर कंसिडर करता हूँ कि उनकी वजह से आई थिंक मैं कराची में रुक गया। अच्छा। वो सुल्ताना सिद्दीकी हैं, सुल्ताना आपा सबकी गॉड मदर। हाँ, वो मैं उनके पास गया और उन्होंने कंप्लीटली ऑन मैरिड मेरी सीवी देख के, मेरी शोरील देख के उन्होंने मुझे मेरी पहली जॉब दी थी। और जो कि हम नेटवर्क पे थी मेरी पहली जॉब एज अ लाइन प्रोड्यूसर। अच्छा पहले लाइन प्रोड्यूसर थे, फिर तुमने होस्ट भी किया शो? फिर मैंने होस्ट भी किया, मैंने भी एक डायरेक्ट भी किया शो। फिर उसके बाद फिर एक और प्ले हुआ था कराची में मुलान रूज के नाम से। हाँ। फिर उसकी रिहर्सल में बिजी हो गया तो वो जॉब को सही टाइम मैंने देखा था। हाँ, उसके अंदर ड्यूक का कैरेक्टर किया। हाँ, मुझे I remember। So yeah, that was the first play in Karachi। और फिर उसके बाद फिर चल ठीक है। स्कूल में तू बड़ा हीरो था। स्कूल में हाँ बहुत बड़े हीरो थे। जो तुम्हारा दिल करता था वो होता था। बंक भी करते थे स्कूल, रिपोर्ट कार्ड्स भी कभी साइन कर दिए। पकड़ा भी गया। ये पर्सनालिटी जो थी ये पर्सनालिटी तुम्हारे काम में कभी काम आई? ये कभी किसी कैरेक्टर में अपनाया ये दिस वाइवेशियसनेस ऑफ योर्स? अब किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर तो नहीं आपकी ये सारी चीजें यूज होती। मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर आपने मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स आप पिकअप करके उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। एक जो कैरेक्टर था
शौकत का इनडाइजेस्ट राइटर, उसके अंदर इसके काफी सारे ट्रेट्स थे कि वो थोड़ा सा था शॉर्टकट्स के चक्करों में और क्लास ही बंक करता था, पढ़ता भी नहीं था, सो वो कुछ था उस तरह का। बट अदरवाइज आई मीन लाइक बट स्टार तुम बचपन से थे बेसिकली। देखो मैं तुम्हें तारीफ कर रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबा कमर के साथ तुमने एक बड़ा ड्रामा प्ले किया, डाइजेस्ट राइटर, ह्यूज हिट, बिग सीरियल, मैसिव। पर अगर सबा कहती हैं कि तुम सा ज्यादा लेजी और कहती वो तुम सो जाते थे, वो तुम्हें पीछे आती थी, कहती मैं चप्पलों के पीछे उसके पीछे भागती थी, मैं चप्पलें मारती थी उसे, कहते थे कि खुदा के लिए प्लीज उठ जाओ और काम कर लो। तुम डिसऑर्गेनाइज्ड हो, तुम लेजी हो, मगर फिर भी तुम दोनों एक सक्सेसफुल हो। ये मैं लोगों को क्या बताऊं? देखें ये माशाल्लाह अल्लाह का करिश्मा है। Your sources didn't tell you is that I'm lazier than him. अच्छा, Yes, yeah. I'm very She lazy. beats me any day on being lazy. ये Yes. तुम लोगों की दोस्ती का राज यही है कि तुम दोनों लेजी हो? दोनों सुस्त। हाँ, so कभी कभी प्लान में थे गौहर क्या सीख रहे हैं यार, मिले, हाँ जिगर बस अभी मिलते हैं, ठीक है। घंटे बाद दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे थे, हम बिजी जा रहे थे जी, कॉल कर रहे थे यार, नींद बाद में मिलते हैं। इतना ज्यादा चलो। या बट यू नो व्हाट, व्हेन इट कम्स टू वर्क तो फिर आप वो लेजीनेस पता नहीं कहाँ जाती, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अदरवाइज मेरे आई थिंक विद द हाइट ऑफ लेजीनेस। हाँ completely any day आप काम के अलावा हमसे मिलने बहुत मुश्किल है। सना जावेद कहती हैं कि यू हैव, आपके जो डायरेक्टरल स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। क्या तुम कुछ डायरेक्ट करोगे या तुमने कभी कुछ डायरेक्ट किया है? मैंने अपना सिर्फ थीसिस डायरेक्ट किया था। हाँ और वो आई मीन लाइक उसके अंदर मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ मेरे थीसिस में ही A+ मिला था। बाकी वाह जी वाह। जिगर। बस ये मगर अगर तुम करोगे डायरेक्ट तो किस तरह का जॉनर होगा मूवी का? रोमांस होगी, कॉमेडी होगी, सीरियस मूवी होगी, क्या होगी? कॉमेडी एक्शन। कॉमेडी एक्शन? तुम्हें तो रोमांस करना चाहिए। नहीं यार रोमांस आई मीन आई थिंक लाइक रोमांस बहुत कूट के भरा है। ये तो मैंने सुना है, मैंने सुना इतना कूट के भरा हुआ है कि तुम्हारे दोस्त कहते हैं कि तुम पेज नंबर 50 पे होते हो और लड़की बेचारी पेज नंबर 1 पे होती है, तुम इतना ज्यादा आगे भागते हो कि इतना ज्यादा तुम्हें इंटेंस प्यार हो जाता है कि तुम शौकीन हो बड़े लव मैरिज के, कि जी शादी होगी तो लव मैरिज होगी, घूमता भागता वो जो लड़की बारिश में नहा रही होगी साड़ी लेके और तुम पीछे करके भाग रहे होगे, मगर ये है कि मैंने सुना लड़की पीछे होती है और तुम जरा आगे होते हो। ये बहुत ज्यादा होता है। और तो ट्रेन शुरू करके निकल जाता है, लड़की वही स्टेशन पे खड़ी होती है। इतने इंटेंस हो? मैं I'm a very intense lover. पहली दफा कब प्यार हुआ? पहली दफा ये भी याद नहीं चाहिए। इतनी दफा हुआ और कितनी पहली दफा कब हुआ और कितनी दफा प्यार हो चुका है? माशाल्लाह बेइंतहा दफा हुआ है। बहुत दफा प्यार हुआ। प्यार तो बेतहाशा हुआ है because I mean like to be really honest I'm all heart. So I mean I just think from my heart, ठीक है, take decisions from my heart. So प्यार कूट के भरा हुआ है और मुझे बहुत प्यार होता है लोगों से और खास तौर पे खवातीन से। खास तौर पे you mean there's an option for men? There's an option as well. I mean like especially women. यानी कि these days I mean like कुछ भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। हाँ कुछ भी किया जा सकता So है। it's ये better कि आप बड़े डीप बात कह गए। हरीम आपने कभी माशाल्लाह तुम कभी ऐसा कोई प्यार उनको कभी हुआ जो तुमने कभी उनको कहा हुआ कि खुदा के लिए यार बस कर दे? कभी? Oh my God! Every time I have to. I mean, this is why I say कि यार असल में जो बंदी तुम्हारे साथ होगी, inshallah when you get married, she'll be one of the luckiest women. क्योंकि he has so much love to give. Wow, listen to me. ये अगर आपको देख रही हैं तो आप जाने से पहले आपको कोई कांटेक्ट डिटेल जरूर बताएंगे। लॉयर बनते बनते शी इज बिकम अ ह्यूज स्टार एंड सिंगल भी हैं और ये सिंगल नहीं है मगर फिर भी बहुत बड़े दिल फेंक है। टू फाइंड आउट मोर कि अपनी जिंदगी के बारे में क्या कहते हैं और इनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या हैं और ये गेम्स एक दूसरे के साथ तो बातों में खेल ही रहे हैं मगर जीतेगा कौन ये जानने के लिए कीप वॉचिंग। दिस इज डी जूस प्रेजेंट्स टुनाइट विद HSY. Welcome back after the break. This is D Juice presents tonight with HSY. यार फेमस होने के बाद तुम लोगों को बड़ी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आती होंगी फेसबुक पे, ट्विटर पे, लव लेटर्स आते हैं कभी?
Love letters. Love letters like खून में लिखे हुए. Oh, I मुझे got this तुमसे- letter once. अच्छा? Yeah. When I think I was 14 or 15. This guy sent me a love letter. किस उसने- खून में लिखा हुआ था? हाँ, apparently this is what he said कि खून में लिखा हुआ है. ब्राउन था या लाल था? ब्राउन कलर हाँ, का. फिर खून में था. फिर मैंने कहा कि वो जब उसने मुझे भेजा and I was like बात सुनो मुझे खून से मसला है. What are you doing? तो तुमने उसको बताया किस तरह? He called me. अच्छा, he called you. तुम्हारा नंबर इतना आराम से There was मिल this जाता है. guy I knew him. तो वो अच्छा, you बेचारा knew उसने him? yeah. Yaar, that's very embarrassing. उसका अब नाम मैं क्या क्या था? मेरा क्या कसूर उसने नाम भेज क्या था दिया. उसका? नाम नहीं बताऊंगी. क्या बात है? उसका नाम मत बताओ, उसके लिए बस एक जेस्चर कर दो. हाँ, उसके लिए जैसे कर वो दो. ये वाला. हाँ, उसके लिए मैं कभी भी ना कर. अच्छा करो तो ना. I mean, isn't she looking like a Madhuri right now? नहीं यार, Yeah, just because the- माधुरी इनकी बहुत बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस हैं. मैंने सुना है कि that your world revolves around the acting. उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है, उनकी खूबसूरती या उनका डांस? Uff, everything about him. अच्छा यार, एक बात बताओ, कंपेरेटिव हो एक दूसरे के साथ? नहीं. नहीं. but फिर आपका होना पड़ेगा because I have a game round for you. हमारा ये gift hamper है from our incredible sponsors D Juice की तरफ से gift hamper, and we have a fun little round for you. It's called the shuffle round. आपको आगे numbers होंगे आपके. You select one number और फिर वो आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है. ये हम खेलेंगे. आप पहले खेलेंगे. Okay. तो आपके लिए पहले नंबर शफल किया जाते हैं and then you select one and we'll see what you get. Can we please shuffle the numbers, please? Seven. अच्छा जी, ये आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी और आपको गेस करने पड़ेंगे कि ये एक्टर्स कौन है. मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट देता हूं कि ये 3 एक्टर्स हैं इसमें. इनमें से कोई भी एक गेस करना है. तीनों के नाम सेलेक्ट गेस करने पड़ेंगे. एक्टर हो तुम जानते होगे. एंड प्लीज प्ले द ऑडियो क्लिप. मैं तो पहले ही कह रहा था कि बच्चों का खेल नहीं हो. और यार, एक तो हर बात तुझे पहले बता होती है. मैं तो पहले ही कह रहा था. अरे मुबारक हो, हालात खराब हो गए शकील भाई. फाद मुस्तफा, जावेद शेख एंड मोहसिन अब्बास. वाओ, वेरी गुड. नामालूम अफराद. वेरी गुड, वेरी गुड. ये Too good. चकास फिल्टर. All of a sudden feel Hashtag. competitive. अच्छा यार, एक और होगा until we give you an opportunity as well. आपके पास भी opportunity होगी. The gift hamper is a great hamper. You should not miss it. It's a D Juice gift hamper. आपको next number shuffle किए जाएं. Shuffle numbers, please. One. हमजा अली अब्बासी की अंदाज में एक लड़की को प्रपोज करें. आप ऐसा करें कि आप हमारी हसीन गेस्ट को please propose. पर हमजा अली अब्बासी की आवाज में. हमजा की ऐसी आवाज खबरदार जो है. मेरे पे थोड़ी कुछ सी. फतवा डाला तुमने. नहीं. हमजा अली यार, हमजा की आवाज में प्रपोज करूं. या ऐसा करो, हमजा अली अब्बासी की आवाज में कुछ भी इनको कह दो, जो इनको तुम्हारा कुछ भी दिल कह दो. करे कुछ कह दो. तुम्हारे लिए आसान कर देते हैं. देखो हरीम, ये कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं तुम पे. ऐसे कपड़े पहना करो यार तुम. और हमजा अली अब्बासी वैसे कहेगा नहीं अभी है. नहीं, ये साड़ी पहनी हुई. अच्छा, साड़ी पहनी हुई है तो ये अप्रूव्ड है. हाँ. ये चेकलिस्ट अप्रूव्ड है. हाँ. ठीक है. सो बड़ा अच्छी लग रही हो तुम. तो हमजा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो मैं सारी उम्र बाया पहन के रखूंगी, खुदा की कसम. Oh, I have to go to the next round now. This is priceless. Director, अगर आप मेरे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, I hope आपने zoom in किया हो because this is the priceless. Hareem, are you ready? आपके 2 out of 2 हैं जी. Fantastic. Now she has to guess both, and then we'll have a round. अगर नहीं तो आप जीत गए. आप तैयार हैं? Shuffle the numbers for you, please. Hareem के लिए number shuffle करें, please. Number 6. माधुरी दीक्षित की देवदास के कैरेक्टर के अंदाज में गौर से रोमांस करें. तू कर ले. नहीं, आप अपने देवदास का कैरेक्टर याद रखो उनका. देवा. दुआ कर मुझे शो के बाद काम मिल जाए.
यार तुम्हें शो के बाद अगर कोई और काम दे ना दे, जो जिसने देवदास बनाई होगी वो जरूर आपको काम देगा। किलिंग संजय लीला would be killing himself right now. अच्छा ये कितने मार्क्स है? बिकॉज आपने मूवी का डायलॉग नहीं बोला, आपने कोई भी डायलॉग बोल दिया। But I made you laugh. improvised, yeah. I made you laugh. इम्प्रोवाइज किया, मगर इम्प्रोवाइज के फुल मार्क्स होने चाहिए। Absolutely. सही कह रहा है यार, आई एम रॉन्ग, यू आर राइट। Always. एंड एक और नंबर शफल किया जाए, one more time and then we'll see what you get next. Shuffle numbers please. Number 2. Guess the actors from this audio clip. आप तैयार हैं? Yeah. Ready? Play the audio clip please. एक बेटी देने के बाद तुम्हारी बीवी में ये अकड़ आ गई। अगर बेटा होता तो फिर? जिसका जो दिल चाहे करे, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्या ये वही बच्ची है जिसे तुमने ख्वाब में देखा था? हमारी संगत। हाँ, हमारी संगत। The guy is also वाले very लड़के easy. की जो आवाज है वो तो you can't even, वो तो अच्छा एक गलत हो गया। वो वादा करे तो अपना गिफ्ट हैम्पर मुझे दे दो। वादा ऐसे तो नहीं दूंगा। अच्छा अगर ये मैंने गेस कर लिया तो मुझे अब मिल जाएगा आपको बस फौरन। टाइम। अच्छा I'm really bad आखिरी at चांस this. लेता हूँ, तीनों गेस करो। Okay, done. गो। फिर से तो नहीं, फिर से चला भी नहीं सकता। हरीम, I can't believe it. I'm really bad at अच्छा this. से any two, guess any two. Any two, any two. What? No, यार. No. Can I? Yes, please. Samina Ahmed, Sabah Kamar, Mikal. Very good. तालियां. ये तो सारे लोग तालियां बजाएं because let me tell you that was. Mashallah. Mashallah, mashallah. Congratulations. This tea juice hamper is yours, buddy boy. Sir, thank you. Sir, आपके लिए हुआ. तो हमारा नेक्स्ट जो कंपटीशन है वो हमारा कॉन्ट्रडिक्शंस का राउंड है। कॉन्ट्रडिक्शन से हमारा हसीन फर्नीचर और उनकी तरफ से 50,000 रुपीस का गिफ्ट वाउचर है। हमारे आपके दोस्त जो हैं वो जीत रहे हैं, ऑब्वियसली उनके पास गिफ्ट टी जूस का गिफ्ट हैम्पर आ चुका है। मगर हमारे पास एक और कंपटीशन है। आप खेलना पसंद करेंगी? Sure. हाँ, अब जीतना पसंद करेंगी? इंशाल्लाह। बिकॉज़ आपने कहा था कि आप बिल्कुल कंपैरेटिव नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि हल्की सी तुम हो। हल्की फुल्की सी। हाँ, ठीक है। दिल टूटता है थोड़ा सा जब हार्ट। अच्छा, तो आपने आपको मैं 8 सवाल पूछूंगा जल्दी से और आपने मुझे जल्दी से उसका जवाब देना है। यू कैन से इन अ सेंटेंस और इन स्मॉल वर्ड्स, बट बहुत लंबा नहीं, ठीक है? वो खत्म करना आपने, कंप्लीट द सेंटेंस। अगर मैं एक्टर ना होती तो? लॉयर होती। वो दिन है और आज का दिन है मैंने कर्ल नहीं कराने आइंदा। Never getting those curls again. Oh, बस यार। मेरे सामने वाली खिड़की में कोई खूबसूरत चीज नहीं रहती है। ओह गॉड यार, अगर आप उनके नेबर हैं तो आई एम इनक्रेडिबली सॉरी। आप जैसे अगर आप अल्लाह करे कि आप नेबर हो, आपने खत ना लिखा हो कि ना आपका खत अच्छा था और ना आपने बिल्लियां मारते हैं, मगर आप खूबसूरत भी नहीं है यार। दिस इज रियली बैड। लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि वजन कम कर ले बहन। नहीं, ये तो नहीं कहते होंगे। नहीं। I get that a lot. आज सुबह जब मैं उठी तो मेरी नाक बंद थी और मेरे सर में दर्द हो रहा था। जब मैं छोटी थी तो? जब मैं छोटी थी तो मैं निहायत ही जिद्दी थी और आई वाज अ रिबेल। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे लिए बहुत ख्वारियां काटी। आए बेचारा बेस्ट फ्रेंड। एक दिन मैं ऑनलाइन बैठी थी और फिर मैंने इतना फनी ट्वीट पढ़ा है, आई कैन नेवर अच्छा? फॉरगेट दिस। देयर वाज दिस ट्वीट, उसमें लिखा हुआ था और समवन टैग्ड मी इन इट, लाइक अर्जुमन जब बोलती है तो ऐसा लगता है गुटखा खा रही है। Like, अर्जुमन was a character in Jaare Dil and I could not stop laughing. मैंने ना मुंह में रुई रखी थी, तो उन्होंने वो someone tweeted अर्जुमन जब बोलती है तो ऐसा लगता है गुटखा खा रही है। मैं यार, oh God, why do people have to say such things to well me? listen to me, इसका मतलब ये है कि लोग people are noticing। Yeah, but yeah. ये इसका ये भी lesson है कि think before you tweet। think before you tweet। No, but it was fun. हाँ। चलें। अब बताओ तुमने गुटखा खाया था कि नहीं खाया? नहीं, कसम से रुई पड़ी थी यार। कोहर, are you ready? Yep. ट्रैवल करते वक्त मुझे जहाज में सोना होता है। रात को सोने से पहले मैं मूवी देखना पसंद करता हूँ। बचपन में मेरे सबसे ज्यादा कुछ क्या? You've lost the Next. competition here. अब नहीं, next. नहीं, बचपन में मेरे क्या सबसे यार? ज्यादा मार्क्स आए थे स्कूल में। ये जो झूठ है। तो I have to complete the sentence. That's it. मेरा सबसे बड़ा खौफ मेरा losing my loved ones. अगर इंटरनेट या सोशल मीडिया ना होता तो? बहुत सुकून होता। रिटायरमेंट के बाद I would settle in Islamabad.
अच्छा, मेरे दिन हमेशा अच्छे गुजरते हैं जब मेरे क्लोज फ्रेंड्स मेरे साथ होते हैं। एक दिन मैं ऑनलाइन बैठा था और मैंने एक इनबॉक्स पढ़ा जो कि अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, अप्रोक्सीमेटली 40 मैसेजेस का था। वाओ। हाँ, एक खातून का। हाँ। और उन्होंने उस 40 मैसेजेस के अंदर उन्होंने अपनी तस्वीरें भी और सारा कुछ, पूरा एक प्रपोजल और वो सारा कुछ उन्होंने मुझे बताया। उनका तुम्हारा इनबॉक्स कैसे मिला उनको? नहीं, वो फैन पेज का। अच्छा, फैन पेज जो है उसके इनबॉक्स में। हाँ। सो उसके अंदर वो सारी उन्होंने 40 मैसेजेस के अंदर एक डिटेल लिखी हुई थी। हाँ। और वो पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा घबरा गया हाँ। कि मैं इसका जवाब दूं या ना दूं या कैसे दूं। फिर मैंने अपने अगेन दोस्तों को फोन किया, कॉल फ्रेंड किया, कॉल फ्रेंड, और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मत दो, तो फिर मैंने नहीं दिया। अच्छा, एक और चीज, नाउ तुम दोनों दोस्त हो, बड़े अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे को बड़ी से जानते हो, और हाँ, अगर मैं ये बताता चलूं कि ये जो क्वेश्चन राउंड तो साथ था, ये जीत रही है इस वक्त। एक तुम्हारा तो जीत रही है, जीत रही है, एक से जीत रही है। सो टू विन यू हैव टू गेट मोर देन हर, एंड टू यू विन, आपने अगर पूरे ठीक कर लें और ये इनका एक भी गलत हो जो आप जीत जाएंगे, ठीक है? तो आप दोनों के पास क्वेश्चंस हैं, आपके दोनों हाथों में क्वेश्चंस हैं और ये एक दूसरे से आप पूछेंगे। हरीम, आप पहले पूछेंगे इनसे कुछ सवाल इनके बारे में और अपने बारे में, और ये लेट्स सी इफ ही गेट्स देम राइट और नॉट। मेरी डेब्यू फिल्म का नाम क्या है? स्या। He knows. He does know. मेरे ख्याल में एक ओवररेटेड पाकिस्तानी एक्ट्रेस। ओवररेटेड? ये बैकग्राउंड म्यूजिक है तुम्हारे जैसे का। कंटिन्यूटी जंप नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूटी जंप नहीं आनी चाहिए। ओवररेटेड, you actually want me to answer this question? गौहर, पता है, I don't trust you. कुछ पुट्ठा जो बोल देते हो, ठीक है? Let me answer this. You think that Oh God, no, this is coming over. प्लीज बताओ। Hareem Farooq is very overrated. He saved me. He did save you, and by the way, the answer was none. None. So this is technically none. This is Farooq is an overrated actor. अच्छा, नेक्स्ट सवाल। मैं खाने में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या बनाती हूँ? क्या बनाती हो? मैंने आज तक इसको खाना खिलाया ही कुछ भी नहीं। मैं आज तक इसके हाथ में कुछ भी नहीं खाया हुआ। बट अगर को बनाती तो क्या बनाती? उल्लू। Listen, that deserves marks. That deserves marks. Answer. और ये एक दफा तूने मैंने फ्रीजर में रखा हुआ है कढ़ाई के लोग। ये एक दफा इसने एक्चुअली बोला था, हम लोग कोई बात कर रहे थे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, और मैंने कहा था कि यार तू क्यों नहीं कुछ बनाती, कहती है उल्लू बहुत अच्छा बनाती। आंसर दे दिया जाए ना दे दिया जाए? यार मैं डिजर्व करता है। ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम बताओ, क्योंकि आंसर बहुत अच्छा था, मगर आपकी मर्जी है। हाँ, I'll give him credit for remembering that joke, but it was noodles. नूडल्स से तो अच्छा ही जवाब था। हाँ, नूडल्स से बहुत अच्छा जवाब था। नेक्स्ट सवाल जी। अच्छा, what comes to my mind while thinking of pleasure? गौहर, remember it's a national TV show, ठीक है? And it's और ये आपका but मेरी बात सुनिए, आपका जवाब भी कोई इतना नेशनल टीवी वाला है नहीं। I'm rethinking. Because मैं आपका जवाब पढ़ रहा हूँ, तो उनको अच्छा चलिए, जिंदगी में किस चीज फिर मेरे पास एक ऑप्शन आया थी कि मैं कोई भी जवाब दे सकता। हाँ, किस चीज से उनको जिंदगी में किस चीज से प्लेजर मिलता है? मेरे ख्याल से शुगर कोटेड तमीजदार जवाब कि आपको एक्टिंग करके अपना प्रोफेशन और पैशन परस्यू करके। अच्छा ओके यार, अच्छा जवाब है जी, अ गुड मसाज। आखिरी सवाल पूछा जाए। Do you actually want me to answer this? Like seriously, आप बाकी में चाहती हैं? देखा, यहाँ पे हमारे लोग की सोच ही गंदी है। नहीं, इतना अच्छा मसाज गंदी नहीं है। No, it's like a shoulder massage. It's like a head massage. Yeah, oil massage. Yeah. Foot massage. Can be any massage. Moving on. एक सेकंड का साइलेंस। एक awkward silence on set. Awkward. अच्छा सेट है यार। अच्छा सेट है यार, बहुत अच्छा सेट है। आखिरी सवाल पूछ लो यार, आखिरी खुदा के लिए सवाल पूछ लो कि मैं ऑफ द एयर ना हो जाऊं शो के बाद। ऑफ द एयर ना हो जाऊं, मुझे कब बनना करते हैं इसके बाद। खुदा के लिए बोल। Which is the first social media platform I visit when my day starts? This is the easiest, by the way. ये तो बड़ा आसान है, तुम भी करते होगे। Facebook?
Yes, right, absolutely right. ठीक है जी. मैं बाद में बताऊंगा कौन जीता. अब आपने सवाल पूछे. Let's see if she knows you that well. And I hope your जवाब्स are also well anyway. पूछ अरे यार, this is the easiest one. उफ, बहुत easy है. मैंने 14 अगस्त में कौन सा कैरेक्टर प्ले किया? इससे ज्यादा आसान को यार, ये तो चीटिंग है. इंडस्ट्री में मेरा सबसे अच्छा दोस्त हमजा. ठीक है. अच्छा, मेरा सेलिब्रिटी क्रश लोकल. चलो ये हिंट दे दी. लोकल सेलिब्रिटी. बट हर दूसरे दिन बोलो कि प्यार हो जाता है. How am I supposed to guess this? But I'd say celebrity crush. Let's see. अच्छा, मैं हिंट दूंगा कि मैंने नाम भी लिया था. I think नाम लिया था. हाँ. सबा. ओए यार नहीं. चलो मूविंग ऑन. सना जावेद. What do I do when I want to relax? Something that gives me pleasure. हाँ. इतने zoom आईनी क्वेश्चन नहीं है. हाँ, ये फेस पे जरा जूम इन किया जाए. हरीम क्या के. करते हैं? When you want to relax, you probably sit with your friends, have a good PlayStation. I don't know. नहीं जी, उनको मैं मूवीज और अकेला Movies बहुत शौक से देखता है. बहुत शौक से देखता है. एंड लास्ट आखिरी सवाल आपका है जी. which is my favorite mobile app. फेवरेट मोबाइल ऐप इनका कौन सा है? How am I supposed to know that? यार ये एक ऐसा मोबाइल ऐप है जो हम सारे यूज करते हैं बड़ी खुशी से. ये मैं बताता चलूं. Very good. बहुत कॉमन है. हाँ, कह चुके हैं. WhatsApp. Unfortunately, आपके ज्यादा सवाल गलत थे. Yes, आपके ज्यादा गलत थे और उनके ज्यादा ठीक थे. तो माशाल्लाह. Congratulations. तारीखी कामयाबी के साथ. Congratulations, 50,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन आपका हुआ. तालियां. और देख दोस्तों. 1 2 वो कुट्टी. Ladies and gentlemen, जब तक वो कुट्टी कर रहे हैं और जब तक वो कुट्टी करके वापस मान भी जाएंगे और दोस्ती भी होगी, उतनी देर तक हम वापस भी आ जाएंगे. Keep watching. We'll be right back after this very short break. This is D-Juice Presents Tonight with HSY. Welcome back to D-Juice Presents Tonight with HSY. जैसा कि आप जानते हैं, हम सिर्फ अपने गेस्ट को अच्छे प्राइजेस नहीं देते, हम आपको भी प्राइजेस देना चाहेंगे. हमारा जो एक आखिरी राउंड नहीं, बट second last round is the worldofhsy.com round. उसमें हम हमसे एक सवाल पूछेंगे, इसका जवाब वो देंगे. आपको ये जवाब हमारे इस साइट पे जाके देना होगा, and whoever gets the answer right will win a free outfit from HSY. And the question is, first, ladies first, अगर आप अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकें तो वो क्या है? Crazy. Crazy. Yeah. Hashtag crazy. Hashtag loyal. Loyal. ओए, ये एक तो हीरो पना निकल रहा है. Eternal hero. हाँ, Eternal hero. Full time. Eternal hero. एक वहीद मुराद आए थे और एक गौर रशीद आए. या बस मेरा ये तो चलो ठीक है. If you know this answer, you know where to go. theworldofhsy.com and give your right answer. A lucky draw will happen. और जो जीतेगा उसको हमारी तरफ से obviously एक free gift मिलेगा. Last thing. हमारे है, हम करते हैं D-Juice Connect because connect to your fans is very important. तुम लोग जिस तरह कनेक्ट करते होगे, I'm sure through Twitter, through Facebook, मगर हम भी उनसे कनेक्ट करते हैं और पूछते हैं उनसे सवाल आपके लिए. जो मैं पूछना चाहूंगा, आप उसका जवाब प्लीज दीजिएगा. आमिर खान पूछते हैं कि सबसे embarrassing comment आपको कभी किसी तस्वीर पे मिला हो तो वो क्या था? बहुत मिले. कोई एक तो है. ये कैसे हो नहीं, लेकिन जो embarrassing. हाँ, embarrassing था, वो था एक तस्वीर मैंने अपलोड की थी और वो शौकत कैरेक्टर जो डाइजेस्ट राइटर में प्ले कर रहा था उसकी थी. तो उस पे बहुत ही जबरदस्त किस्म के कमेंट्स नीचे आए हुए थे. जबरदस्त किस्म के कि ये कौन बोंगा है,
और ये इसने अपनी शक्ल देखी है, ये तो- बड़ा जहर लगता है मुझे। कोई जहर, बुरा, बोंगा, इसमें हाँ। से कौन सा सबसे ज्यादा तुम्हें एम्बैरेसिंग लगा था? बोंगा। हैशटैग बोंगा, हैशटैग लॉयल बोंगा। I am the hashtag loyal bonga. हैशटैग लॉयल बोंगा। अच्छा चलें, ये आखिरी सवाल है कि जी सलमान अशरफ पूछते हैं कि आपकी फिटनेस की रिजीम क्या है? अभी तो रिजीम स्टार्ट करनी है फॉर माय अपकमिंग प्रोजेक्ट, लेकिन फिलहाल सिर्फ हेल्दी डाइट, हेल्दी जो खाएं सब कुछ खाएं लेकिन अच्छा साफ सुथरा खाएं। हेल्थी फूड खाना खाएं, ठीक है? Healthy. ठीक है। आसिफ इकबाल आपसे पूछते हैं कि बचपन में आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता था? डर लगता था अंधेरे से। अंधेरे से? था। और अब नहीं लगता? अब नहीं लगता। आखिरी सवाल है जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, I think I still have to make a film जिसमें the woman is the hero. Woman is a hero? Yes. And last question. मैं नहीं जानना चाहूंगा, I think सब जानना चाहेंगे. What's next for you two? What's the big project? Big projects. There's few films coming out. एक मेरी जबार की फिल्म है. Amazing, she's amazing. Yeah, oh, brilliant. I love her. और क्या कहते हैं, we're coming up with our own productions as well. आप एक किसी के साथ, बहुत बड़ी हस्ती के साथ मूवी प्रोड्यूस भी कर रही हैं? Absolutely. क्या नाम है उनका? हस्ती का Miss रेहाम खान. Miss रेहाम खान. मिस रेहान खान, और आप एक मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं? Absolutely. I wish you all the best with your projects. आप बताएं गौहर, आपके next, what's the big thing that we should look forward to? आपका next big project क्या है? It's a feature film and Bilal Ashari is directing it. ये वो तो नहीं है? मौला जाट। मौला जाट। ये वो ही है. यार ये इसका मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए. This sounds like it's going to be. I'm और ये कब actually- निकल रही है? This year we'll start shooting and most probably next year, अच्छा. 2017, it will be released. It's a big. It's a huge project, mashallah. So those are big projects, यार, and I wish you both the best. सबसे पहले तो मैं I want to say thank you. I know कि आप लोग कितने busy हो, आप मेरे शो पे आए हो. आपके आगे आपकी तस्वीरें, if you could please be kind enough to sign them. We'd like to hang them on our superstar wall because that's exactly what you guys are. Thank you so much for being here, guys. Thank Please you. sign.